Good afternoon, sir, and welcome to all the dignitaries and participants from various organizations who have joined us for this meeting today, sir. So this is part of the monthly meeting that we have with all the partners who are working for TB in the country. It includes national and international NGOs. It includes all our development partners, all the professional associations that we have which are working for TB. And then also, sir, we have the 5 pilot states that we have identified. So state representatives are also joined in today. So I'll request, with your permission, sir, to start the meeting. I'll request Ma'am Aarti Ahuja to kindly give a welcome address. Thank you. Honorable Minister Health and Family Welfare, Secretary Health and Family Welfare, WHO representative to India, and all our colleagues and partners who have joined us virtually today. I welcome you to this meeting. As you are aware, this is the 4th meeting being chaired by Honorable Health and Family Welfare Minister on this issue. We started this in November last year, and 24th was designated as the due date on which we will be meeting every month virtually and taking stock of what has happened. As you are aware that we have a National Technical Support Unit which is primarily focused on advocacy, communication and social mobilization, with that the acronym for which is ACSM. So that has started working, and we have been having regular interactions with the NTSU. A lot of work has been done on that, and a presentation will also be made before you, where we will also hear the partners and we will hear their inputs on what has been done. I would like to very briefly tell you about some other things that have been going on in the TB division in the meantime. We have presented before the Honorable Minister best practices that were compiled by WHO across the world, and we have decided to adopt some of those best practices in the program. We are also working with other ministries, few of which are relevant for us. We are working with them in identifying areas of collaboration, after which we can actually drill down and decide what it is that needs to be done by other ministries and other agencies for the TB program. Apart from that, we've also decided, now that the corona cases have subsided, it is time for us to move to the field and take stock of what is happening there. Because without knowing that, we may actually really not know the real situation. So teams have been formed. These are multi-sectoral teams with our development partners, with doctors, with technical experts, academia. These teams are being formed, and very soon we will have their terms of reference ready, and a detailed plan for their visit has also been made. So we'll also be sharing that formally through email with all our partners. And very soon they'll start going to states and hand-holding and understanding the ground situation. Honorable HFM has also planned a detailed review of the states. So for that, I will also seek the inputs and guidance of all our partners, because all of you have different geographies and different thematic areas of work. So it will be very instructive and very useful for us to have your inputs for these state reviews, and we look forward to your guidance and inputs for that. Now, just 3 points I want to make for us as we are going further, and this is for all partners. We have divided or have a basic understanding of your work in terms of the geographies covered by you, and also the areas or the broad themes covered by you. It is probably now time to drill down deeper and have a more granular database and a more grassroots level kind of understanding of the work being done. The idea is that we should be able to identify the gaps in geographies as well as gaps in activities, so that we know where it is that we need to focus more. The idea being that we know that you are already doing work in a lot of places, but there could be areas of darkness and vacuum which we need to fill in then. So that is something that I'll again request you to please do, so that we can undertake this exercise.
The next point is that basically the Jan Andolan or the social mobilization campaign is creating a demand, and demand without commensurate supply side logistics and implementation is something, if it is not commensurate, it can rebound back very badly. So the demand generation has to be coupled with the supply side, the programmatic part of it. So my request to all the partners is also that we also look at the programmatic delivery side of it, and we also marry the two. So whatever demand generation or whatever social mobilization we are doing or other work that we are doing, we make sure that the program is strengthened. The third point is about reaching down to the grassroots. We have a lot of partners in the field. We have self-help groups, we have Panchayati Raj institutions, we have teachers, we have postmen, we have so many different categories of people whom, if we train properly, whom if we tell properly, they can become our partners in notification, in ensuring treatment adherence, in ensuring that there is no loss to follow up, etc. So they can actually become partners in program operationalization. This, which is also something that Honorable HFM has been emphasizing, that the TB program has to take a paradigm shift and move towards community involvement. So that was the third point I wanted to make, and we seek your cooperation in that area as well. So once again, I welcome all the partners and all my colleagues, and thank you for joining this meeting. Thank you, ma'am. So with that, so we can have a quick presentation from our partners on behalf of the entire network of partners and the NTSU. I'll invite Dr. Sachdeva, the country director from the Union Southeast Asia, to make a quick presentation on this. Thank you, Dr. Thank you, sir. Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Secretary, sir, AS Madam, WR India, all my colleagues and friends. So I'll be bilingual, sir. Just as Archana initially pointed out, there has been some progress on this, and we have created creators और भी फील्ड में हम उसको यूज़ कर सकते हैं सर. तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में अर्चना ने भी दिखाया था, नेक्स्ट स्लाइड में, कि सोशल मीडिया मैसेजेस आफ्टर अ थॉरो रिसर्च एंड इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स 17 मैसेजेस सर तैयार किए हैं. दे आर also been put in your folder, sir, for going through, and now these messages will be shared with all states, all partners, to amplify these social media messages. So ये creators जो हैं ये they are ready and they are ready for use, sir. नेक्स्ट में उसी तरह से 3 पोस्टर्स बनाए गए हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे यूज़ पे डिस्प्ले के लिए तैयार किए गए हैं. दे टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, हाउ टू गो अबाउट टीबी. सो अगेन दे विल बी शेयर्ड विद ऑल स्टेट्स, ऑल पार्टनर्स, एंड स्टेट्स विल बी advised to put them in the display them in the primary health centers, health and wellness centers. तो ये भी एक प्रोडक्ट जो है रेडी फॉर यूज़ है. नेक्स्ट प्लीज. एक सर टीबी एंथम तैयार किया गया है, अगेन आफ्टर अ थॉरो रिसर्च एंड कंसल्टेशन विद सीटीडी एंड अदर पार्टनर्स. तो आई से कि दिल प्ले दैट. हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है. इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा. इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इसको जैसे ही आप गो अहेड देंगे, विल शेयर विद स्टेट टीवी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट टीवी ऑफिसर्स एंड योर सारे पार्टनर्स के साथ कि इसको ये एम्पलीफाई कर देंगे। सो चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पार्टनर्स ऑफ डेट में आएगा। फिर कुछ पार्टनर्स के काम को हाईलाइट करते हैं। सर जपाइको जो है काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के साथ। So they have developed a national resource package for building capacity of community health officers in TB, तो health and wellness centers को engage करने के लिए। Training of trainers, state TB officers, district TB officers, WHO consultants, पूरे all states and union territories में एक round complete हो गया सर। Roughly 3326 community health officers trained कर दिए गए on integrating TB services at Ayushman Bharat Health and Wellness Centers. Roughly 800 CHOs को train किया active case finding में। Training of TB survivors भी किया, जो TB से ग्रसित हो चुके हैं और बच गए हैं, उनमें से 856 survivors को as TB champion develop किया गया सर। एक national level quiz किया था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के साथ, जिसमें रफली 12,000 CHOs ने पार्टिसिपेट किया। उनके विनर्स को आजकल तो वर्चुअली होता है, सो वर्चुअली दे हैव बीन फेलिसिटेटेड। टॉप 3 नेशनल विनर्स एंड हर स्टेट में टॉप 3 विनर्स जो है उनको वर्चुअली फेलिसिटेट किया गया to encourage their participation. And we understand that the number of CHOs is increasing day by day, so this is a continuous process and it will be again amplified, they will be trained again and again, and then also जैसे मैडम बोल रही थी उसको monitoring and evaluation का एक strong component रखते हुए, and then we will course correct if there is a need to do so. Next. निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक टीबी मरीज को उनकी पोषण सहायता के लिए प्रति माह 500 रुपए दिए जाते हैं। मरीज चाहे सरकारी अस्पताल से इलाज करा रहे हों या निजी डॉक्टर से, उनके इलाज अवधि तक हर महीने ये राशि सीधा उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। राज्य में कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने अपने डॉक्टर के पास अपना बैंक खाता नंबर जमा नहीं कराया है और इस कारण उन्हें निक्षय पोषण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मरीजों तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा एक नई पहल की जा रही है। IVR सेवा के माध्यम से निक्षय पोर्टल पर टीबी मरीजों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटेड कॉल्स द्वारा इस योजना संबंधी संदेश दिया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि अपने डॉक्टर या सरकारी टीबी कार्यकर्मी के पास एक सरकारी पहचान पत्र के साथ अपना बैंक खाता नंबर जमा कराएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। नमस्कार, आपको ये कॉल राज्य यक्ष्मा केंद्र की ओर से की जा रही है। यक्ष्मा या टीबी के हर मरीज को उनके इलाज अवधि के दौरान पोषण सहायता के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। ये राशि सीधा मरीज के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। आपका बैंक खाता नंबर आपके डॉक्टर के पास जमा नहीं होने के कारण आपको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः अनुरोध है कि कृपया तुरंत ही अपने डॉक्टर या सरकारी स्वास्थ्य कर्मी के पास जाकर अपने एक सरकारी पहचान पत्र के साथ अपना बैंक खाता नंबर जमा कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। याद रखें, इलाज अवधि पूरी होने तक नियमित रूप से दवा खाने और साथ ही पोषक आहार के सेवन से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। मरीजों द्वारा दी गई जानकारी को निक्षय पोर्टल पर अंकित किया जाएगा और इसके बाद निक्षय पोषण योजना के तहत देय राशि सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस नई IVR सेवा द्वारा सरकार हर टीबी मरीज तक ये संदेश पहुंचाने और उनकी देय राशि उनके बैंक खाते में जमा कराने के लिए आकांक्षी है। जो निक्षय
निक्षय पोषण योजना हमारी स्कीम है, तो उसके अपटेक में चैलेंजेस है काफ़ी स्टेट्स में। तो एक उनको प्रमोट करने के लिए IVRS इनिशियली ये बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और यूपी में शुरू किया गया। जैसे ही सक्सेसफुल होगा इसको रेप्लिकेट करेंगे बाकी जगह में। हमारे पार्टनर चाय जो है क्लिंटन हेल्थ एसोसिएट्स ने इसको डेवलप किया है। साथ ही में वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं हेल्थ स्टाफ की और निक्षय पोषण योजना। तो 6 स्टेट्स में कर दिया था। दे कॉल इट निक्षय परामर्श। एंड ये परामर्श जो है लाइव सेशंस हैं उनके साथ। आज तक 40 परामर्श सेशन कर लिए उन्होंने, 315 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए उनमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स को तैयार कर दिया है। सो अगेन जैसे ही प्रोग्राम या मॉनिटरिंग से जो भी आप फीडबैक देंगे, इफ इट इज़ वर्किंग वेल, अगेन फिर इसको स्केल अप करने के लिए सजेशन दी जाएगी सर। नेक्स्ट क्लिंटन हेल्थ का दूसरा एक था कि उन्होंने व्हाट्सएप इंटरवेंशन चेन्नई में शुरू किया, जिसमें वो पब्लिक को ट्रेन करते हैं। एक मेल तैयार किया, एक गिफ्ट तैयार किया, आप प्ले करते हैं उसको। शॉर्ट वीडियो दूसरा वो तमिल लैंग्वेज में, पर थोड़ा सा प्ले करके उसको promotional video है, it's in Tamil but initially Bro, உனக்கு தொடர்ந்து உடம்பு சரியில்லாம போகுது, ஏன் நீ டாக்டரை பார்க்கல? Bro, என்னால லீவ் எடுக்க முடியாது, ஒரு நாள் சம்பளம் போகும். Bro, ஒரு நாள் சம்பளம் பெருசா இல்ல உங்க வாழ்நாள் முழுக்க சம்பாதிக்கிறது பெருசா? So primarily it's a digital communication का ये part है, जिसमें various methods of engagement लिए गए हैं। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है चेन्नई में। एंड अगेन जैसे भी रिकमेंडेशंस आएंगी उसको आगे स्केल अप के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नेशनल लेवल पे अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ब्रो कोई भी कहीं भी सर आपका क्वेश्चन होगा तो पार्टनर्स लॉग इन उनको दे सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज में सर महाराष्ट्र में मीडिया जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग करी। So, local journalist इन्वॉल्व थे। उसके बाद आप देखेंगे 100 से अधिक प्रेस कवरेज आई उनकी ट्रेनिंग के बाद ऑन टीवी, जो थोड़ा सा डिस्प्ले किया गया इसको। और मॉड्यूल्स मैडम कह रही थी कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए मैडम ने रेफरेंस दिया था, तो मॉड्यूल्स भी डेवलप किए गए कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट के लिए। ब्लॉक ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया यूपी में, महाराष्ट्र में, और 53 इन्फ्लुएंसर्स और 4 हेल्थ मिनिस्टर स्टेट्स के मीटिंग में थे, ट्रेनिंग में रहे। एक राजस्थान के एनवायरमेंट। मैं सुखराम बिश्नोई, वन एवं पर्यावरण मंत्री, आप सभी से सादर निवेदन करता हूं कि आज इस महामारी के दौर में टीबी के विरुद्ध राजस्थान सरकार और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एक मुहिम चला रहा है। आप सभी प्रबुद्ध नागरिक से मेरा निवेदन है कि आपके आसपास पड़ोस में किसी को 15-20 दिन से खांसी आ रही है या शाम को फीवर हो रहा है, ऐसे आदमी को प्रोत्साहित करके उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद उससे ट्रीटमेंट लें। निश्चित रूप से राजस्थान में टीबी हारेगी और हम जीतेंगे। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। रमन जी, जरा थोड़ा ये जो आपने वहाँ महाराष्ट्र में इंटरेक्शन किया मीडिया से और सब उनको बताया, उसका थोड़ा सा हमें बताइए, विस्तार से बताइए। तो उसको हम उस सेंस में समझना चाहते हैं कि हम धीरे धीरे करके ये जो हमारा 24 तारीख की जो हमारी एवरी मंथ जो मीटिंग है, जिसमें हम जैसे जैसे अपने कैंपेन में और अपनी स्ट्रैटेजी में ग्रो करते जाएंगे, तो हम उसके साथ साथ इसी पैटर्न पर सारे जो भी देश में हमारे, हम समझते हैं कि जर्नलिस्ट में भी हम एक हमारे टीबी वॉरियर्स कह लीजिए, टीबी क्रूसेडर्स कह लीजिए, ऐसे लोगों की फ़ौज को हम लोग जो है ना विकसित करते हैं।
तो हम आपका अभी अनुभव सुनते हैं, और क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये अनुभव है कि जब हम लोगों ने इसका पोलियो एरेडिकेशन का काम शुरू किया था 94 में दिल्ली में, तो हमारा बहुत बड़ा जो सपोर्ट हमें मिला था वो जर्नलिस्ट के माध्यम से मिला था, और उनकी कलम से, और ख़ासकर उस ज़माने में दूरदर्शन होता था और जी टेलीविज़न, 2 ही टेलीविज़न होते थे, तो इन लोगों की मदद से हमें बहुत सपोर्ट मिला था। और they played a very crucial, and they were really instrumental in making that first attempt success in Delhi. तो अभी ट्यूबरक्लोसिस में भी वो अनुभव है, आपके अनुभव हैं, और भी जो सारे मिला के, क्योंकि जो भी हम लोग करेंगे उसको कई गुना स्केल अप करने में, मल्टीप्लाई करने में और लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की थ्रू आउट बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण उसका रोल रहेगा। तो हमें मीडिया के अंदर भी जो है ट्यूबरक्लोसिस क्रूसेडर्स बनाने हैं। कुछ लोग बहुत पैशन के साथ खुद भी करेंगे, कुछ लोगों को हम प्रेरित करके और टीबी क्रूसेडर्स बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो कम से कम ये 24 तारीख का जो सारा इंटरेक्शन है, जिसमें सारी हमारे पार्टनर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, जितने भी एनजीओ, सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं, प्रोफेशन के दूसरे, सबको हम 24 तारीख को मिनिमम एक बार हम लोग जो एक प्रोग्राम पिछले 8 महीने से बनाया है कि हम लोग रिव्यू करते हैं, अपने संकल्प को एक प्रकार से रिएटरेट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जैसे आज हम शेयर कर रहे हैं, किसी पार्टनर ने किसी दिशा में काम किया है, किसी पार्टनर ने किसी दिशा में काम किया है, किसी पार्टनर ने किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम किया है, और जैसा अभी पहले कहा गया था कि भाई इसमें जो गैप्स हैं, कोई कम्युनिकेशन में या ज्योग्राफी में या जो भी जहाँ जहाँ गैप्स हमको महसूस हो रहे हैं, वो भरने का हमें मौका मिलेगा। और फिर अभी पिछले सप्ताह हम लोगों ने मीटिंग की थी, जिसमें जो सारे इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका हम लोगों ने अवलोकन किया था। उसमें से हमारे भारत में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। दूसरे भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में जो मंत्रालय हैं, उनके लिए भी ऐसे हम लोग मॉड्यूल्स डेवलप कर रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस को हेल्प करने में। तो मैं अभी आपसे सुनना चाहता हूँ कि ये जो भी आपने महाराष्ट्र में किया, इसका जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपका क्या अनुभव है, वो थोड़ा सा आपसे मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। So, Raman, बताइए जर्नलिस्ट जी, थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, तो विद द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री एंड एनटीईपी सर, स्टेट टीबी प्रोग्राम्स ने हैव इंट्रोड्यूस्ड मेनी इनोवेटिव वेज टू एंश्योर सर कि एवरी टीबी पेशेंट रिसीव्स क्वालिटी केयर सर। तो हमारा यही सपोर्ट था सर टू द स्टेट टीबी ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप सो दैट द मीडिया कैन आल्सो टॉक मोर about the strategies implemented by the program, sir. And what we ensured is that, sir, in Maharashtra, journalists from across the state actually joined. Because it was virtual, we also had this opportunity that we could have journalists from Mumbai, Pune, Nagpur, Aurangabad, Nashik, all to join in, and we had around 50 journalists joining in, sir. And हमने देखा, sir, there is so much interest on TV from journalists to report on TB. So our main effort is to ensure, sir, कि जो भी whatever programs are being implemented, they are also reported thoroughly by the media across the state. And we saw that as a result, sir, there were more than 100 pieces like Dr. Sachdeva mentioned. So we do see a lot of appetite, sir, from the media. And we will continue to support the program and state offices with disseminating the accurate and right information to the general public through media as well as other means, sir.
I think this is a very good idea because कोविड का आना तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कोविड के कारण फॉर्चुनेटली ये जो नया कल्चर या नया, ऐसा नहीं कि हमको पहले नहीं पता था कि हम वीडियो से और ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे कल्चर में नहीं था। कोविड ने हमको पिछले 1.5 साल में एक तरह से मजबूर किया, लेकिन मजबूर करने के बाद अभी हमको 1.5 साल के बाद लगता है कि ये शायद हमारे लिए एक प्रकार का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आपने महाराष्ट्र में 50 जगह से लोगों को जोड़ लिया, और अभी हम यहाँ सोच रहे हैं कि हम अपनी जब 24 तारीख को हर महीने मीटिंग करें तो हम सारे देश के अंदर प्रमुख स्थानों से जो है लोगों को इसके अंदर जोड़ने का, मीडिया के लोगों को अपील कर सकते हैं, मीडिया के लोगों को टीबी क्रूसेडर्स बनने के लिए जो है अपील कर सकते हैं, उनको ऑन बोर्ड रख सकते हैं हमारी जो गतिविधियां हैं उसके लिए। और अभी जो एक बड़ा एक प्रकार का उस कंपटीशन के भाव को भी हमें विकसित करना है, क्योंकि जो अभी एक प्रकार से जैसे एक हमारा लक्षद्वीप है और दूसरा एक हमारा जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, एक यूनियन टेरिटरी एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक प्रकार से हमारी भाषा उसके डेफिनेशन के हिसाब से वहाँ टीबी फ्री हो गया है, वो टीबी वहाँ एक प्रकार से एलिमिनेट हो गया है। तो ये हमारा वो फिल्म जो भी सब लोग अपने अपने देखिए, देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, मतलब कोई देर इज दिस इज एन एंडलेस एक्सरसाइज। आप 4 लोगों को बैठा दीजिए और उनको बोलो कि ये ख़त्म करने के लिए इस बीमारी को काम करना है, तो वो 1 घंटे में आपको 400 सजेशन बना के दे सकते हैं। मेरा अपना पिछले 25-30 साल का अनुभव ये कहता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से, मिलने से, जुलने से, बात करने से इतने सारे नए बातें जनरेट होती हैं। तो सब लोग अभी जब मिलकर काम करेंगे एक प्लेन पे, आइडिया यह है कि किसी ने एक ने अच्छा काम किया तो उसका काम चारों तरफ डिसमिनेट हो। हमें एक साथ महीने में एक दिन ऐसा हो जब हमारे सब लोगों की शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस हो जाए और एक दूसरे से हम मोटिवेट हो, एक दूसरे से इंस्पिरेशन हमको मिल जाए, और ये इसी से मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आता जाएगा। हमारी चीज़ें स्केल अप होती जाएंगी और हर डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो आई थिंक वी कैन यूज़ दिस एक्सपीरियंस। अब एक एफर्ट किया, एक साथ मान लीजिए 100 जगह पे एक पॉजिटिव जानकारी डिफरेंट एरियाज़ में पहुंच गई, और उसी में से अब इसको आज की मीटिंग के अंदर से मुझे ये समझ में आता है कि एक मीडिया में टीबी क्रूसेडर्स की एक नई कैटेगरी विकसित है, और उसके लिए वो नेचुरल वे में डेवलप होंगे। फिर उसको किसको टीबी क्रूसेडर आपने बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये भी आप धीरे धीरे अपने आप ही आप नेचुरल वे में इवॉल्व होगा ये सारा कुछ जो है ना। तो थैंक यू रमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रेजेंटेशन से आपने अच्छा किया सर, बीच में इनको इंटरेक्शंस के लिए बोला। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि हम हर बार 2 पार्टनर्स को बोलेंगे। नहीं, कोई नहीं, जब मतलब जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। आज की मीटिंग हम लोग इनकी बात सुनने समझने के लिए, और इन्होंने अभी तक जो चीज़ें कर रहे हैं अच्छा दे है, वी हैव टू मेक, हम नहीं खाली सुन रहे, सब एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, इसलिए और सबने एक दूसरे के अनुभव से अपनी गतिविधियों को और स्केल अप करना है और इम्प्रूव करना है बेसिकली। तो जो 5 स्टेट हमने अभी डिसाइड कर दी जिसमें हम सब एक्टिविटीज करेंगे, तो उनको एसटीओज को भी आज ज्वाइन करवा लिया जी इस मीटिंग में, कि वो आपको सुनेंगे तो थोड़ा सा इंस्पायर होंगे, दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू टेक दिस पॉजिटिवली। तो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय एंड तेलंगाना, तो वो ज्वाइन है सर आज इस मीटिंग में। चलिए नेक्स्ट आइएगा। मैं तो नेक्स्ट KHPT सर हमारा एक और पार्टनर है, बहुत अच्छी एक इंटरवेंशन है उन्होंने। कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अभी प्रोग्राम ज़्यादा एंगेज नहीं करता इनके साथ, यूथ फेडरेशंस
ऑटो ड्राइवर्स यूनियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, ट्राइबल फोरम्स एक्सेट्रा, इस तरह की जो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एसोसिएशन बने हुए हैं, उनके साथ काम करते हुए उन्होंने 3000 कम्युनिटी स्ट्रक्चर इस तरह की आइडेंटिफाई करी KHPT ने। फिर रफली 3400 लीडर्स सेलेक्ट किए, उनमें से देखो ट्रेन अबाउट 850। उन लोगों ने फिर सेल्फ में अपने आप में 21,000 पेशेंट्स को स्क्रीन किया, 3000 से ज़्यादा को रेफ़र किया। आई मीन नंबर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, बट ये है कि उन्होंने एक नया प्रयोग किया जो काफ़ी सक्सेसफुल है। और टीबी पॉजिटिविटी उतनी है जितनी हमारी एक्टिव केस फाइंडिंग में आती है। तो इट इज़ एज गुड एज एक्टिव केस फाइंडिंग, प्लस एक नए स्टेक होल्डर्स को रीच कर रहे हैं, एक नया जनरेट कर रहे हैं लोग जो हमारे टीबी के मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। तो ये कुछ उनके टेस्टिमोनियल्स हैं लोगों के जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स में रहे। उन्होंने एक और नया जो HIV में करते थे, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाए। एक तो हमारा टीबी सर्वाइवर कम्युनिटी एंगेजमेंट अलग है, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। अगर मान लीजिए 10 पेशेंट का एक सपोर्ट ग्रुप है, एक पेशेंट अपनी दवाई नहीं ले गया तो उसको घर से पकड़ के लाएंगे, उसको दवाई दिलवाएंगे, या मोटिवेट करेंगे दवा मत छोड़ो। तो इस पेशेंट सपोर्ट ग्रुप पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया और दिखाया कि उससे भी टीबी में सक्सेसफुली हम पेशेंट का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, ट्रीटमेंट सक्सेस बढ़ा सकते हैं। तो ये KHPT का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दिखाइएगा। ये एक बार जरा ये छोटा सा उन्होंने वीडियो बनाया था। ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಹಣ ಏನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. మాతల్లో ఇంటికి పోయేది, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది, చేసేది మేము పారాడుతుంటాం. ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 180-190 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 7-8 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಂಥ ರೋಗನ ಬರಲಿ, ಎಂತೆಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯನೇ ದುಡಿದು. So KHPT से डॉक्टर मोहन है क्या यहाँ पर? KHPT is logged in here. Dr. Mohan, और women you can talk about it. देखिए, ये मेरे ख्याल से उनकी बात तो बड़ी स्पष्ट है, और ये शायद सभी के ऊपर एक बात लागू होती है कि जितनी हमारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो हर एक व्यक्ति किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम या अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से, उसको ऑर्गेनाइज्ड कह लीजिए, उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह लीजिए, वो किसी न किसी तरीके से जुड़ा है। और इन्होंने उसी बात का एक प्रकार से इस्तेमाल किया है कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को इन्होंने जो है ग्रुपिंग किया। वो ऑलरेडी ग्रुप्ड होते हैं, वी हैव टू ओनली पिन पॉइंट देम, लोकलाइज देम। और उसी तरह से इन्होंने 3395, जैसा इस स्लाइड पे लिखा था, 3395 इन्होंने लीडर्स को ट्रेन किया। तो जब हम एक लीडर को ट्रेन करते हैं या एक लीडर को मोटिवेट करते हैं तो एक प्रकार से आप सारे के सारे उसके साथ जुड़े हुए लोगों को, मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 1994 में एक आदमी को जाकर मोटिवेट करने पर मेरे को 516 गुरुद्वारों के अंदर कंटिन्यूसली कई महीने तक पोलियो की अपील का मैसेज वहाँ पर जो है उनके कीर्तन से पहले, उनकी शपथ से पहले ये वहाँ पर माइक पर अनाउंसमेंट होता था। बट फॉर दैट आई ओनली मेट नंबर 1 मिस्टर मंजीत सिंह कलकत्ता, एंड देन in my office I called all the members of the Delhi Gurdwara Prabandhak Committee who had been elected at that time, और इनके 2 लोगों के इंटरेक्शन से I was able to handle all the Gurdwaras. Similarly, when we could motivate 2 people, one was the Shahi Imam of Jama Masjid, and also
the chairman of the Delhi Waqf Board, I was able to involve 3,000 mosques in the capital. Similarly was for the Church of North India. Similarly, it was the temples when we involved all the top leaders of the Sanatan Dharma Sabha. We could involve everybody. तो हर एक जो कैटेगरी का कोई स्काउट्स की कैटेगरी है, कोई एनएसएस की कैटेगरी है, कोई एजुकेशन से जुड़ी हुई कैटेगरी है। यहाँ पर उन्होंने अभी इवन 3 व्हीलर वाले भी जो हैं हमारे भाई, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उनकी भी पूरी की पूरी यूनियन है। हम अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो है, जब उनसे हमें मिलना होता है तो हम पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उनके यूनियंस हैं, उनके सारे दफ्तर हैं। आप रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कुली भाई हमारा काम करते हैं, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके लीडर को आप मोटिवेट कर दीजिए, दे विल मेक श्योर कि उनके सारे कुली भाई जो हैं उनकी जो है सारी टीबी की चेकिंग हो सकती है। तो द सोसाइटी, व्हाट द पॉइंट दैट दीज फेलोज हैव यूज्ड, जो KHPT के बारे में भी बताया गया, दिस इज़ ए ओरिजिनल चीज़ है ये सारी सोसाइटी में। बस हमारे को थोड़ा सा उस दिशा में सोचने की बात है। तो जितने भी अभी NGOs हमारे और जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, इस दिशा से ख्याल करेंगे तो कुछ लोगों को पकड़ के और हमारे उस बहाने पता नहीं कितने सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एक बार उनको आपने मोटिवेट कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया और एक लाइन बता दी, और व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ टू हेल्प देम। आप उनके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर प्रोएक्टिवली टीबी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टीबी ढूंढने के अंदर सहायता करा रहे हैं। उसके बाद आप उनका फ्री इलाज पूरा का पूरा कराने की व्यवस्था आपके पास है। जिनको टीबी ढूंढ लिया उनको बराबर न्यूट्रिशन के लिए भी आप पैसा दे रहे हैं, और ढूंढने के अंदर अगर किसी डॉक्टर की मदद ले ली वहाँ पर, तो उस डॉक्टर को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट, बट somebody has to tell them, somebody has to go and motivate them, and somebody has to involve all their colleagues जो कि जिस सिस्टम का वो फॉर्मल इनफॉर्मल एक परसेप्शनल नेतृत्व करते हैं। तो आई थिंक दैट वे दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल। KHPT ने जो बताया ये सभी पर लागू होता है, सभी लोग कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से फॉर्मूले पे कहाँ काम कर रहे हैं, ये सब जगह पर लागू होता है। सर वो लोग लॉग इन थे, थोड़ा टाइम लग गया, दे वांट टू टॉक टू यू। हाँ बताइए। अब तो मोहन आप बात करना चाहेंगे। Thank you for this opportunity, sir. Good afternoon. As you rightly put it, sir, we are looking for reaching around 15 million population across 4 states, sir. In that, we categorized around 6 million who are part of one of the other informal groups, sir. They are very unorganized. Being it a women self-help group or auto rickshaw driver union, mining union, drivers union, I think construction union, even we found in big metro cities, even the domestic worker who are working in each of the flat area comes around 3,000 to 4,000 population. So we are mapped each of these unorganized group in all the 4 states, sir. Because what we, when we did this as a pilot in the initial stage, we never expected we are receiving so overwhelming response from these community groups, sir. The referral which they have done and the people who have got tested, then the stigma and so on, other issues are addressed by the community, sir. We are looking for this scaling up across the country, sir, with this good experience what we are gaining from these 4 states, sir. So mining is the one population, tribal is the another population, industries and also other unorganized sector is our core area of our reach, sir. Thank you very much, sir. I'm very happy that you are moving in the right direction. I think this is optimal utilization of our idea, basically the ideal way to go ahead. I think you are on the right track. Thank you very much. Thank you. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सर नेक्स्ट हमारा एक पार्टनर है रीच, जो लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट पे काम करते हैं, तो काफ़ी सारे स्टेट्स में काम कर रहे हैं।
स्लाइड ले आइएगा। तो CTD ने कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से एक वर्क प्लेस पॉलिसी फाइनलाइज करी। एक फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वर्क प्लेस पॉलिसी पे, और हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं कि TB फ्री वर्क प्लेसेस बनाइए। तो झारखंड में विद देयर एडवोकेसी, झारखंड हैज़ अगेन नोटिफाइड TB फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी। इसी तरह से सारे स्टेट्स के साथ एंगेज करके अगर वो नेशनल पॉलिसी स्टेट्स लेवल में भी अडॉप्ट होती जाए तो इट्स अगेन अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो TB फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड to ensure industries and state adopt the employer-led model। तो बेसिकली एम्प्लॉयर इंश्योर करेगा कि उसके वर्क प्लेस में किसी को TB नहीं है, सबको स्क्रीन करेंगे, बताएंगे हमारा वर्क प्लेस TB फ्री हो गया। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट को TB फ्री करा, वो बोल देंगे हमारे फैक्ट्री में या हमारी कंपनी में कोई भी TB नहीं है। इसमें आरती जी एक काम और करिए इसी को कि जितनी भी चाहे वो सरकार कर रही है या NGOs कर रहे हैं या पार्टनर्स कर रहे हैं, जो भी कुछ उसमें यानी कि न्यू या बेटर प्रैक्टिसेस हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, उसको कोई एक किसी एक पोर्टल या किसी एक मतलब उसका कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज़्म बनाइए जिसमें हर एक अच्छा अनुभव उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में ऑटोमेटिकली सबके साथ शेयर करने का मैकेनिज़्म हो, सो दैट नोबडी हैज़ टू वेट। पहली बात तो मतलब हर 24 तारीख को सारी बातें तो सबकी हम लोग अपने पास जो भी समय होगा उसमें नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर इसका कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आपस में बातचीत करके मैकेनिज़्म बना दें कि किसी ने नया अनुभव किया है, नया कोई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया है, उससे उसको लाभ मिल रहा है, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको लग रहा है ये बाकी जगह भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए, तो वो उसको वहाँ पर जाके पोर्टल पे डाल दें। और हमारा मैकेनिज़्म में कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म हो, ऐसी चीज़ों को रेगुलरली देखते रहें और हम भी सब जगह प्रोएक्टिवली उसको डिसेमिनेट करते रहें, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ हमारे आइडिया को डालने से वो आगे कई गुना ज़्यादा उसका जो यूज़ है वो मल्टीप्लाई होगा और एम्पलीफाई होगा। तो ये मेरे ख्याल से दिस इज़ समथिंग विच इज़ वर्थ डूइंग। तो ये हमारा लगातार मतलब हमारा एक तरह से आप कहिए कि ये हमारा पोर्टल जो है ये नए इम्प्लीमेंटेड आइडियाज़ का बैंक है, और इस बैंक के अंदर जितना हमारे पास जमा होगा अकाउंट में ये सब हम साथ साथ बांटते रहेंगे सबके साथ। ये सबका कॉमन अकाउंट है, इसमें सभी लोग पैसा भी डाल रहे हैं और सभी लोगों को पैसा निकालने की भी छूट है बेसिकली, है ना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये थोड़ा दिमाग लगाइए तो ये बहुत बढ़िया ढंग से ये हो सकता है। Sir, this is already in practice. We have put best practices from the states in our website, yes. TVC India website. So that is specific website for the Central TV division. So we will incorporate more such best practices which will be coming. जो अभी तक कर लिया वो भी उसी institutionalized mechanism में डाल दीजिए, है ना। Only portal separate portal for that. आप उसको मैंने पोर्टल नाम दिया, आप उसको जो मर्जी नाम दे दीजिए, कोई मैकेनिज़्म बना दीजिए। आज की तारीख में मतलब एक ये हर चीज़ ऑनलाइन और ये सब हो जाती है ना, तो सबको कोई भी किसी को देखना है, कोई जो TV क्रूसेडर है वो फ़ोन खोले और देख ले भाई क्या क्या चीज़ें देश में हो रही हैं, क्या क्या आ गई हैं और क्या मैं इसमें से उठा के जो है किसी को सुबह उठ के मन में आए भाव कि अब मैंने अब अगला जो साल है अपना डेडिकेट इसके लिए करना है, तो देखे उसमें से जो उसको पसंद है उस आइडिया पे काम करना शुरू कर दे। Okay, so we'll do that and we have separate app also to be our मतलब उसके क्या क्या तरीके हैं उसमें डिटेल में, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। मे बी व्हेन यू हैव ऑलरेडी डन इट, मे बी इन द सब्सिक्वेंट मीटिंग यू कैन शेयर एंड प्रेजेंट इट हियर, है ना। इसी तरह से सर इन्होंने भी एक पॉलिसी विल शेयर विद ऑल द स्टेट्स, राइट? हाँ, यस ऑब्वियसली, हाँ नहीं बिल्कुल। इसको मतलब देख लीजिए क्रिटिकली, इसमें कुछ और एडिशन करना हो, कम ज़्यादा सुझाव देना हो तो ये बता सकते हैं उनको।
सो टीबी सर्वाइवर्स को मोटिवेट करने के लिए इनका भी एक एनिमेशन है, वो मैं आज नहीं दिखा रहे सर हम यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बने टीबी चैम्पियन। तो कैसे आप टीबी चैम्पियन बन सकते हैं। इसी तरह बिहार में टीबी चैम्पियंस जैसे टेली काउंसलिंग करी, पेशेंट्स को सपोर्ट किया। 21 टीबी चैम्पियंस कॉन्टैक्टेड 6000 टीबी पेशेंट्स। तो ह्यूज पोटेंशियल सर, अगर राइटली एक्सप्लॉइट किया जाए इनको। 21 टीबी चैंपियंस ने 6000 टीबी पेशेंट तक पहुँचे, उनको समझाया टीबी के बारे में, कैसे अधेरेंट रहना है, ये सब चीज़ें फॉलोअप में लगातार दवाई लें, डोज न मिस करें, वो सब चीज़ों को एज अ मेंटर समझ लीजिए। तो अगेन इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल सर टू बी स्केल्ड अप। नहीं, उन्हीं के संबंध में रहेंगे, उनकी ठीक होगी, उसी में से कुछ टीबी चैंपियन भी बना लेंगे। उसमें देखेंगे कि ये बड़े इंटेलिजेंट लोग आए या ये बड़े मोटिवेटेड लोग पेशेंट मिले, उन्हीं को ठीक भी करें और उनको अपने साथ जोड़ना शुरू कर दें। एक सर हम सोच रहे थे निक्षय का जो ऐप है, तो जब कोई जैसे डिस्कवर हुआ कि मुझे टीबी है, तो वो ऐप में टीबी चैंपियंस का एक होना चाहिए सर जी, कि जैसे मेरी एज की सम वुमन आई मे वांट टू टॉक जी, तो उस तरह से एक वो रहे सर कि मैं उससे किसी के साथ भी कभी भी कांटेक्ट करता हूँ, जिसमें से उनमें से चूज कर। हाँ बनाइए, मतलब उसको तो जितनी ज़्यादा आप इसको वाइड स्पेक्ट्रम कर देंगे उतना ही अच्छा है। तो सर ये चैम्पियंस या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बनाए, तो ये अपने आप को कैसे मॉनिटर करें। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एक रीच ने डेवलप किया है और डिवीज़न उसको एग्जामिन कर सकती है, एंड वो खुद कैसे अपने आप को अकाउंटेबल रहे कि हमने ये काम करना है, कोई देख भी नहीं रहा फिर भी वो खुद से मोटिवेटेड रहे। तो एक फ्रेमवर्क है जो उस पर भी टीबी चैम्पियंस को ट्रेन किया गया है। विमेन लीडर्स के साथ एंगेज किया इन्होंने तमिलनाडु में, तो उनको भी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस में ट्रेन किया गया कैसे रिस्पॉन्ड करना। तो कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स भी हैं। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क अच्छा फ्रेमवर्क है, उसको अगर डिसेमिनेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबली जो है टीवी में काम करेंगे सर। नहीं, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लगेगा रीच का कोई रिप्रेजेंटेटिव। राम्या, आर यू है? और अनुपमा? Yes. Sir, this is Subrat. Subrat, yes, Subrat. सर इसमें जो डॉक्टर सचदेवा ने बताया, जो अलाइज प्रोजेक्ट पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन 4 स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। 15 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। और जो कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क सर जो बात की हम लोग, तो इस इज समथिंग फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इन द कंट्री टू सी दैट कि जो टीबी चैंपियंस काम कर रहे हैं हम लोग के साथ, दे आर इन्वॉल्व एंड एंगेज, और उनके लिए एक टूल बनाया हम लोग। ये टूल लेकर वो लोग असेस कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन द टूल दे आर प्रिपेयरिंग ए ब्लॉक एक्शन प्लान। सर उसमें जो इशूज आ रहा है, दो इशूज आर डिस्कस्ड एट द मीटिंग विद द मेडिकल ऑफिसर, द DTOs, and most of the issues which are common in the field are being sorted out. So basically, it's a community accountability for both the side, from the TB survivor side and also from the program side are being sorted out. So sir, ये अभी pilot किया है, it's going on. Maybe another 3 months time we can have a sort of report which can be shared with the program. Good. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So next, back to this, sir. Sorry, just wanted to add one more thing, sir. Is also we have trained nearly 400 TB survivors, women TB survivors, and engaged them to do TB work. And that is very, very interesting, because we have now a huge pool of women TB survivors who are doing TB related work, and it is in fact the very first time they've come out of their household. And it's been such an incredibly empowering experience for the women. And I think since the country has a very, very specific gender responsive TB services, this would be like one of the very first step in empowering women TB survivors.
So just wanted to add that. Thank you, sir. I think this is also a very bright idea, because बहुत लोगों को ये रहता है कि ये ठीक होगा नहीं होगा, एंड स्पेशली जो इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गांव वगैरह में लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये ठीक भी हो सकता है. तो आई थिंक सच वुमेन ये दे कैन भी मतलब एकदम क्रूसेडर की तरह काम कर सकती हैं. गुड आइडिया. एक्चुअली मतलब इट इज़ स्लाइटली लेसर देन ए टीवी चैम्पियन. टीवी चैम्पियन हाईली मोटिवेटेड है, बट ये अपने लिमिटेड दायरे में अगर अपने छोटे पंचायत में, अपने गांव में भी अगर ये छोटा छोटा काम कर रही हैं, लोगों को जाके मोटिवेट कर रही हैं, एक मैसेज दे रही हैं किसी गैदरिंग में, देखो मेरे को दवाई मिली थी और दवाई पे कोई खर्चा भी नहीं हुआ था और मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई हूँ और मेरा सारा टेस्ट भी अब नॉर्मल आ गया है. तो ये बात भी बोलेंगी अपनी भाषा के अंदर, अपने स्टाइल से, तो लोगों को राइट मैसेज जाएगा. तो इसको भी ये जो अभी मैडम ने बताया, इसको भी और अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए प्रोग्राम के अंदर हमें, मतलब ये थोड़ा टीवी चैम्पियन से एक स्लाइटली लेसर कैटेगरी है, लेकिन इसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इसको इस पर भी वर्क होना चाहिए. वी कुड आई थिंक ऑफ हाउ टू मेक दिस, इसकी भी स्केलिंग अप और चारों तरफ जो है ना नंबर्स बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट सर. सर डॉक्टर साहब एक मिनट सर, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक अबाउट टीवी चैंपियंस, जो कि काम किया है सर कोविड के टाइम में, जो टाइम में सर लॉकडाउन था. मोस्ट ऑफ आवर टीवी चैंपियंस they have actually reached out to many of the people with TB जिसका पास दवाई पहुंच नहीं पा रहा था, दे डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, साथ ही काम किया है और घर घर जाकर साइको सोशल काउंसलिंग भी किया है, दवाई के लिए सपोर्ट किया है, एंड फैमिली को भी सर इनकम जनरेशन प्रोग्राम एंड सम सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन भी किया है. सो इट्स अ रियली गुड वर्क फ्रॉम द टीबी सर्वाइवर, टीबी चैंपियन साइड. Thank you sir. Thank you so much. Over to Dr. Sandava. No, thank you Subrat. So next sir, एक और पार्टनर है यूनियन जो कॉर्पोरेट टीबी को कॉर्पोरेट्स के साथ एंगेजमेंट में काम कर रहे हैं. तो कमिटमेंट में तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 ने कमिट किया. एक्चुअल में जो कुछ सब्सटेंटिव ट्रांसलेट हुआ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड काम कर रही है, ONGC काम कर रहा है, अपोलो टायर फाउंडेशन वो काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सब्सटेंटिव वर्क है. सो इसको मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए स्टेट बाय स्टेट एंगेजमेंट का प्लान बनाते हुए एक हरियाणा फोकस्ड सेमिनार किया था जिसमें चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया. उसको फॉलो करते हुए 2 दिन पहले DTOs और उनके प्रोग्राम के ऑफिसर्स को ट्रेन किया ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर एंगेजमेंट. इसको आगे फर्दर फॉलो किया जाएगा. हरियाणा बीइंग मेनली एन इंडस्ट्रियल स्टेट. हरियाणा के क्या चीफ मिनिस्टर ने कोई मैसेज दिया इसमें, क्या किया? ये फोटो ये रिकॉर्डेड नहीं है सर मैसेज. ज्योति वुड यू लाइक टू कम यार? अच्छा वो फोटो लगाया हुआ. हाँ फोटो लगाया. कैसे वीसी हुआ था बेसिकली सर. नमस्कार सर, डॉक्टर ज्योति जाजू बोल रहे हैं सर. ये कॉर्पोरेट टीबी प्लेज जो है, दिस इज इनिशिएटिव व्हिच इज लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड USAID इन 2019 और उसके बाद इसको हमने यूनियन के सपोर्ट के द्वारा इसको काफ़ी आगे बढ़ा दिया है. अब हमारे पास सर 122 इसके मेंबर्स हैं और 7 बिजनेस एसोसिएशंस भी इसके मेंबर्स हैं. और इसके तहत हमने जो आपने बताया कि अब वेबिनार के थ्रू हमने काफ़ी वेबिनार्स किए, जिसमें एक वेबिनार जिसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आए थे टीबी फ्री हरियाणा के तहत, और जो कि मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. उसके बाद सर फोकिया ने भी किया, अपोलो टायर्स ने भी किया, और सर जो आपने अभी बताया था कि पोर्टल, हम लोगों ने कॉर्पोरेट टीबी प्लेज का एक पोर्टल भी बनाया. तो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स उस पोर्टल में जाके टीबी के उसमें जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो सब इंफॉर्मेशन उनके पास है. टीबी किस तरह से होता है, अगर उनको कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी उस पोर्टल पे अवेलेबल है. तो ये सर कॉर्पोरेट टीबी प्लेज जो है वो एक बड़ा सक्सेसफुल इनिशिएटिव है और अब हम टीबी फ्री वर्क प्लेस के लिए हर स्टेट के साथ इसमें काम कर रहे हैं और वेरियस एसोसिएशंस के साथ भी काम कर रहे हैं सर. डॉक्टर त्रेहान सर
हरियाणा में हमारे साथ Yes, जुड़े sir. रहते हैं, वो हैं, अगर 2 मिनट का टाइम देते हाँ हैं। हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर रेहान, आर यू लॉग्ड इन? I think he is logged out. I saw him initially. सर he was just there. So डॉक्टर त्रेहान का सर काफी बड़ा रोल रहा है सर, हरियाणा में एक्टिवली काफी काम हो रहा है सर इसके। इसी तरह से सर एक कम्युनिकेशन टूल किट एनिमेशन फिल्म, वो भी है छोटी सी, थोड़ी सी, आप इट्स अ लॉन्ग फिल्म पर हम 30 सेकंड के लिए उसको प्ले कर देंगे। Geeta, this cough of yours has still not gone. Did you try the ginger tulsi concoction I had told you about? Yes, Sharma ji. Sharma ji, she has tried everything from the cough syrups to all possible home remedies on the internet. Nothing seems to be working. Geeta ma'am, if you don't mind me asking, isn't your cough there for more than 2 weeks? वाह वी, तेरा ये भी हिडन टैलेंट है। No sir, but I had seen an ad on TV that said cough that lasts for more than 2 weeks could be a sign of TB. Kuch bhi abhi. What are you saying? How can Geeta get TB? Yeah, how can she? Sir, anyone can get TB. It is an airborne disease. It is caused by a bacteria that spreads through air and infects the lungs. हाँ चलने दीजिए। तो लंबी फिल्म में सर ये मीटिंग्स में उन सब में लोगों को एनकरेज करने के लिए यूज किया अच्छा बनाया है, मतलब एक नए अंदाज में दिया है। थोड़ा हिंदी में भी होगा तो और भी अच्छा है। जी सर। So Jyoti, do we have a Hindi version of this animation film? कोई नहीं, अभी देखने की बात नहीं, लेकिन हिंदी में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी तो सब। Yes sir. Yes sir, we have sir. And Dr. Trehan has also joined sir, so he would like to add. अच्छा ठीक है। बताइए डॉक्टर त्रेहान। डॉक्टर त्रेहान, आर यू देयर? डॉक्टर त्रेहान है क्या? Jyoti, is he there? Sir, yes sir, Dr. Trehan is there and he is on mute, I believe. He is not able to unmute himself. चलिए, जैसे जैसे कम्युनिकेशन गैप ये ठीक होगा टेक्निकल, तो वी विल हैव हिम ऑन द लाइन। इन द मीन टाइम whenever he is unmute, we will have him. Come, take it forward. सर नेक्स्ट स्लाइड डाल दीजिएगा। फिर सर निक्षय की जो एक ऐप डेवलप हुई टीबी आरोग्य साथी मोबाइल ऐप वर्ल्ड टीबी डे पे लॉन्च हुआ था जी। अब इसमें जो है इसको यूज़ केस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें, तो डाउनलोड कैसे होगा वो मैसेजेस, तो लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि इसको डाउनलोड करें, यूज़ कर पाएँ, पेशेंट्स यूज़ कर पाएँ, सिटीजन्स यूज़ कर पाएँ। अभी मोस्टली पेशेंट ऐप है, इसको सिटीजन सेंट्रिक डेवलप कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 13,000 डाउनलोड्स हो गए हैं इसके, जिसमें से ऑलमोस्ट 60% ने इन्फॉर्मेशन को असेस किया है। 5,000 लोगों ने अपना खुद का डाटा देखा और रफली 1,500 लोगों ने अपना खुद का असेसमेंट लिया, जैसे कोविड का असेसमेंट होता है, और 160 लोगों को पता चला कि हमें टीबी हो सकती है, उनको टेस्टिंग के लिए आगे बढ़े हुए सर। सो ज़्यादा डॉक्टर मंडल, वुड यू लाइक टू ऐड? Yes, sir. I mean, in the last meeting, sir, if you can remember, you and also AS Madam has asked us to disseminate this app as far as possible. So already we have disseminated this app, I mean information of this app, to all the development partners, to all the STOs and DTOs. Now, I mean, it's getting escalated day by day. So now the figure is just like 13,000. So hopefully we can cross 1 lakh within 15 days. So I am just behind this app, and I am trying to get it escalated and disseminated throughout the country.
So it's a useful app both for the common citizen, also for TB patients. And TB patient can get entered into his or her information after putting his Nikshay ID. And for the common citizen, they can get all the information regarding TB information along with the location of the nearest TB health facility and other information like nutritional advice and other information also. इसको ये कर सकते हैं जैसे हम लोग आने वाले समय में इसके लिए ऑफिशियली भी वर्क करिए। जब हम लोग 94 में शुरू किया था तो कोई ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, विद इन द गवर्नमेंट ही सब आपस में बात करके होता है। क्योंकि किसी भी बात का कोई भी एडवर्टाइजमेंट या सरकार में किसी भी तरीके से कुछ भी निकलेगा, उसके अंदर नीचे जो है का भैया इसके अंदर पोलियो के बारे में मैसेज ज़रूर छोटा सा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही नंबर 1 तो हम टीबी के लिए करें, और फिर टीबी की जो भी चीज़ें आप डेवलप करते हो उसमें कोई एक तरीका निकाल के थोड़ा थोड़ा ये जो अगर ऐप वास्तव में लोगों के लिए किसी भी तरह से कोई गेम चेंजर जैसा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो वी कैन उसके अंदर ही नीचे एक उसकी अपेंडेज की तरह ये भी साथ साथ लगे और ये भी साथ साथ अपना मल्टीप्लाई होता जाएगा। जी दूसरा से हमारे RT-PCR ऐप में भी है जी, we can somehow link a message कि हाँ। आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, तो ये हो सकता है चेक करना। बिल्कुल। अभी ये जो आपका आजकल भी हम 117 करोड़ लोगों को देते हैं, है ना, जो 117 करोड़ फ़ोन्स के थ्रू जो है, वी कुड साइमल्टेनियसली वर्क ऑन दैट, राइट। अब धीरे धीरे हमको, क्योंकि वो लोग वो वाला मैसेज सुन के भी लोग कई बार कहते हैं यार अब इसको भैया थोड़ा कम कराओ, बहुत हो गया, अब हम सीख गए हैं, हम जान गए तो आपको अप्रोप्रिएट दे दिया। तो हम ये नहीं कहते कि इसको, लेकिन इसको भी थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर दें कि दिन में मान लो 2-3 बार इसके बारे में भी कुछ चलना शुरू हो जाए, तो लोगों को एक बार सेंसिटाइजेशन हो जाए अगले 6 महीने में कि अब टीबी को ख़त्म करने में भी उसी तरह से कंट्रीब्यूट करना है जैसे कोविड के लिए हमको एक मूवमेंट बना के काम करना था। वी शुड वर्क ऑन दैट, वो हो जाएगा बहुत आराम से। ये जब इसका किया था हम लोगों ने लास्ट ईयर कोविड का, तो संबंधित मंत्रालयों वगैरह से कोऑर्डिनेट किया था वो, है ना। अरुण जी से पूछ लेना, उन्होंने इनिशियल होमवर्क उस समय किया था, वो किससे बात करना है, क्या करना है, वो सब हो जाएगा। चलिए आगे चलिए सर। नेक्स्ट स्लाइड है। कुछ और पार्टनर्स जैसे PSI ने 13,400 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया टीबी एंड कोविड पे। पाई कंसल्टिंग ने एक इंडिया टीबी समिट की थी विद 15,000 पार्टिसिपेंट्स। आप भी आपने उसको इनॉग्रेट किया था सर। इन्होंने भी कुछ पेशेंट एजुकेशन वीडियोस बनाए हैं जिसको टीबी पे चर्चा कहते हैं। आज वो नहीं दिखा रहे हम, पर उसके ऑलमोस्ट 10 लाख व्यूज़ हो गए हैं, यूट्यूब पे डाले। नेशनल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, अब हम आप लेटर फॉर स्पीकर, मतलब नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में एक MPs के सेंसिटाइजेशन के लेटर फॉर स्पीकर ड्रॉ कर लिया, लोकसभा चेयरमैन, राज्यसभा कंसेप्ट नोट हो गया। तो जैसे ही आप गो अहेड देंगे वो करेंगे। यूपी में भी सेम काउंसलर्स को एंगेज करने के लिए प्रोसेस जारी है। एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जिन डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो चाय ने उनको एक असेसमेंट का मॉड्यूल बनाया जिसमें उनको रिवॉर्ड किया जा सके। तो दे हैव डन वंस दैट, दे आर हियर। अगर कुछ हम उनसे डिटेल लेना चाहेंगे तो मिल जाएगी। और आपके विजिट्स का वो तैयार किया है सर। ये जैसा कि पहले अभी बताया था इन्होंने कि भाई जगह सारे देश में चुने, उनके अंदर सेलेक्टेड टीम्स बनाए, टीम्स में सबका पार्टिसिपेशन करें
वो टीम्स वहाँ पर जाएं, वहाँ के सारे लोगों को इन्वॉल्व करें, सारी अपनी बात कहें, उनसे बातों को वापस लाएं, उन सब चीज़ों में से नेट कुछ इन्फ्लुएंस निकले, वो सारी चीज़ें आके हम लोग बताएं। और इन विजिट्स के पीछे पीछे फिर हम लोग जाएंगे अपने, हमारे साथ हमारे मतलब हम जाएंगे कहीं पे चौबे जी जाएंगे, कहीं पे सेक्रेटरी हेल्थ जाएंगे, कहीं पे बाकी लोग जाएंगे। तो ये भी सिलसिला साथ साथ देशव्यापी जो विजिट्स का है इसको भी तेज़ी से अब वर्कआउट करना शुरू करेंगे। मे भी एक बार जैसा हमने तय किया था कि एक बार बड़े पैमाने पे वर्चुअल करेंगे और उसके बाद फिर वी विल फॉलो इट अप विद, उसी में उनको सेंसिटाइज कर देंगे कि वी आर कमिंग एंड उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। तो इसको आई थिंक नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं एक हाँ ये सारे काम में ना देखिए, इसमें ये थोड़ा सा अपनी जब इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो जो एक बेसिक प्रिंसिपल हर चीज़ में होता है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। करने इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उसको पहले वाली चीज़ को पहले, उसके बाद फिर दूसरी वाली चीज़ को, फिर तीसरी वाली चीज़ को। करना सब कुछ है लेकिन सीक्वेंस के अंदर इसको करते जाएं और एक महीने के अंदर जो जो कुछ किया वो सब लोग मिलके एवरी 30 डेज इस लेवल पे जो है हम लोग सबके साथ जुड़ के उसको मॉनिटर करते रहेंगे। What do you say, WHO? I think you may not have followed Hindi, huh? I've been trying. There are a few notes here. I think I get it. Yes. So this is about the themes that we go out. Yes, yes. So you are following everything. उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे सर, आपके विजिट्स और स्टेट का रिव्यू वगैरह सबको विल सपोर्ट दी सीटीडी। उसी तरह से सर एक पार्टनर MSL है जिन्होंने कुछ टीवी पे जिंगल्स बनाए हैं, एक छोटा सा जिंगल आपको सुनाइए कि इट इज टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स एंड सुनाइए। टीवी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है, इरादा अपना रंग लाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-116666। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा। सो जितने भी ये मटेरियल्स रेडी हैं ये सब स्टेट्स के साथ सबके साथ शेयर करके फर्दर डिसेमिनेशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा। ये कैसा करें कि ये जो चीज़ें जो आगे शेयर होने के बारे में जैसे बात करें तो कोई एक यहाँ कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज छोटा सा मैकेनिज्म बनाइए, कुछ फ्यू पीपल, वो थोड़ा सा एक तो डुप्लीकेशन ना हो, एक प्लेन भी सब चीज़ों का थिंकिंग, प्लेन स्ट्रैटेजी एक दूसरे के साथ सिंक होनी चाहिए। इसलिए ये नहीं कि भाई कोई भी चीज़ बनने के बाद उसकी प्रॉपर एक स्क्रूटनी हो, उसमें कोई सजेशन दिया जाना है तो वो मतलब एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्क्रूटनी एंड स्क्रीनिंग के बाद ही, बिकॉज वंस यू शेयर फ्रॉम हेयर दैट मीन्स कि उसको आपने एकदम अपनी सब तरह की वो लगा दी, तो दैट हैज़ टू बी ऑफ the highest quality in terms of its content, in terms of its presentation, in terms of its message and what can we achieve out of it. तो इसका भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज कुछ मैकेनिज्म बना दीजिए। हफ्ते भर के अंदर एक बार ज़रा वो टीम बैठ के देख लिया, कहीं आपको लगता है कि हम लोगों से भी कुछ थोड़ा सा आइडिया लेना है तो कभी भी समय लीजिए। हम लोग तो मैक्सिमम इसके ऊपर डेडिकेशन रहेगा अगले आने वाले समय के अंदर।
सो नेक्स्ट सर, इस पूरे अभियान को, टीबी मुक्ति अभियान को इनिशियली 5 स्टेट्स का चयन किया गया, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, पूरा रीजनल रिप्रेजेंटेशन लेते हुए यूपी के साथ एंगेजमेंट शुरू हो गया है। इनिशियली एक शॉर्ट टर्म प्लान फर्स्ट 3 मंथ्स को यूपी का तैयार किया गया। अभी क्योंकि कोविड भी चल रहा है तो फुल फ्लेजेड नहीं जा पाए कुछ लोग, हालांकि लखनऊ में हमारे कुछ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान 1-8 महीने में पूरा डेवलप हो जाएगा। नहीं, अभी मेरा इसमें सुझाव ये है, देखिए अभी ये कोविड तो अभी 1-1.5 साल इसको हो गया है। कोविड के दौरान भी पिछले साल हमने जितने भी इंटरेक्शंस किए स्टेट्स के साथ, सब में ट्यूबरक्लोसिस और नॉन कोविड जितनी भी हमारी बीमारियां, इनका भी बराबर एम्फेसिस रखा था। अब वी कैन नॉट अफोर्ड टू कीप ऑन वेटिंग कि भाई कोविड पूरी तरह से, इसको भी रादर कोविड का जो एक इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट था कि सारा जगह कोविड की बात, कोविड का टेस्ट, कोविड के लिए इलाज, वो सारा अनुभव इसके अंदर भी ऐड ऑन करके जो टीबी की स्ट्रैटेजी थी, और हम अब ज़्यादा वेट ना करें। अब ये मान के चलें कि कोविड को तो हम जो कर रहे हैं, बाकी सबको जो कर रहे हैं, लेकिन अब कोविड की तरह इसका भी फोकस जो है वो हमारा रहना चाहिए। ये नहीं आप इंतज़ार करना कि ये कोविड कब ख़त्म होगा, कब इसका ज़ीरो होगा, या कब इसकी ये वेव पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगी। वो साथ वो चलता रहेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर रहे, लेकिन इसमें अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उसी को ध्यान रखते हुए यूपी में काम शुरू कर दिया है सर। हाँ। तो STOs के साथ, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एंगेजमेंट शुरू हो गया, डिजिटल मीडिया प्लान बना दिया। नेक्स्ट मैं जैसे ये देखेंगे, ये कल ट्रेनिंग हुई यूपी में, अपना एक स्लाइड छोड़ के नेक्स्ट स्लाइड नंबर 19 दिखाइएगा ज़रा। सो ये कल की ट्रेनिंग है सर यूपी में, सोशल मीडिया में कैसे एंगेज करना है, उनके सारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सबको कैसे यूज़ करना है, क्या करना। तो ये कल एक ट्रेनिंग कंप्लीट करी है जिसमें 180 पार्टिसिपेंट्स थे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को कैसे यूज़ करना है, तो ये डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स को कैसे मैसेजिंग देनी है, ये कल किया। तो इसको ये शॉर्ट टर्म प्लान में ये सब चीज़ें। गो बैक टू दी स्लाइड नंबर 18 पे आ जाइए, पिछली स्लाइड पे आ जाइए, नहीं इसकी नेक्स्ट, हाँ ये वाली ना, ठीक है। हाँ, तो इसमें जैसे प्लान किया है वो यूपी असेंबली में सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल MLAs, तो गवर्नर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। लेटर फ्रॉम चीफ मिनिस्टर सारे MPs MLAs यूपी को भेजा जाएगा। MP लेड कंसल्टेशंस की तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह से क्वार्टरली न्यूज़लेटर को भी एक प्लान किया गया, STO के साथ टेम्पलेट शेयर कर लिया है, वो करें। सोशल मीडिया ट्रेनिंग कल हो गया। मीडिया ब्रीफिंग ऑन टीवी, जैसे आपने महाराष्ट्र देखा तो यूपी में भी वो प्लान कर रहे हैं, उसी तरह से जर्नलिस्ट को, मीडिया को ब्रीफ करते हुए। और ओपिनियन पीस आपसे भी कुछ हमने मेजर न्यूज़पेपर में लिया, कुछ मिनिस्टर्स से, डॉक्टर चौबे साहब से लिया। तो उसी तरह से यूपी में भी मिनिस्टर्स को कुछ ओपिनियन पीस न्यूज़पेपर के लिए प्लान कर रहे हैं, ग्रेटर विजिबिलिटी लेने के लिए। ग्राम प्रधान को टीबी सेंसिटाइजेशन का ही एक मुहिम है। अगेन इसमें रमन, यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग मोर हियर? Is he here? Yes, sir. Sir, so STO sir is also here, sir. He can also provide guidance. We worked on his guidance, sir. But one update, sir, with STO sir's guidance, we have created a training module on TB, sir. Abhi panchayat elections just concluded in UP, and as the Gram Pradhans will be trained on their role on various subjects, we have also proposed with STO's guidance on a training module and chapter specifically on TB, sir. So that Gram Pradhans also support with raising awareness, and also, sir, support with program activities at the village level. So that was हमारी ASNDG ने भी आज शुरू में रेफरेंस दिया था इनॉग्रल में।
that she wants a chapter on TV for Gram Pradhans and Panchayati Raj institutions. So they have attempted something, madam. So we'll share. तो एक बार देख लेंगे उसको. एस टू यूपी अगर कुछ कहना चाहे तो we will like to have his ideas. नमस्कार सर. जैसा कि समय समय पे दिशा निर्देश प्राप्त हुए सर सेंट्रल टीवी डिवीजन पे और आपके भी लेटर्स थ्रू ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर यूपी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी सर आए हुए हैं. उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में यूपी में हम लोगों ने काफी एक्टिविटीज को प्लान किया है. अभी जैसे संदेवा साहब बता रहे थे तो अभी yesterday we conducted training of all the DTOs, all the district level officers were trained on how to use media, social media platforms effectively for creating mass awareness. इसके अलावा सर यूपी recently had panchayat elections. Newly elected gram pradhans are there. So we have with the support from Global Health Strategies, we have developed a module for their sensitization, and yesterday it has been sent to Panchayati Raj Department for including it in their curriculum. So sir, multiple activities are being planned. Sir, in addition to this, we have planned CHO's training. It was we intend to start it in the month of July, but you must be aware, sir, that UP is having a special campaign in the month of July, the name of Sanchari Rog Niyantran Abhiyan. One additional component is Dastak component, and our senior officers have decided that to use this Dastak campaign as an additional opportunity for identifying TB cases along with other infectious disease. TB cases will also be identified. Just because of this campaign, we have deferred CHO's training, and now we will initiate that training in the month of August. And rest of the things, they are being planned, sir, and as and when we will be receiving guidance from the national level, we assure you that UP team is highly motivated and we will not leave any stone unturned in creating it a mass movement, sir. Good. So, जैसे आप कह रहे थे सर, कोविड को देखते हुए भी हमने यूपी में एंगेजमेंट शुरू कर दिया. नेक्स्ट 4 स्टेट्स में नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता. 19-20 नंबर स्लाइड पे आ जाएंगे. एक और जिंगल है सर, आपको सुना देते हैं. नहीं कर दीजिएगा. टीवी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है. इंडिया जब साथ आएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा. हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है. मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-116666. टीवी हारेगा, देश जीतेगा. नेक्स्ट दिखा दीजिएगा. नेक्स्ट स्लाइड. तो सर ये लास्ट स्लाइड है जो 2021 में क्या क्या और करेंगे. तो ऑल 5 स्टेट जो आइडेंटिफाई करी, सबका एक कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक टीबी मुक्त भारत का प्लान होगा. स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स तो बहुत है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान, कुछ मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स का प्लान बना देंगे. स्टेट्स को फिर बोलेंगे कि बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो प्लान बनाए. तो एक ट्रेनिंग के रूप में उनको हर स्टेट के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स का एक मॉडल, उनका कंटेक्स्ट स्पेसिफिक प्लान बना के उनको स्टेट को कैपेसिटेट कर देंगे ताकि वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग से भी चाहें तो प्लान बना सकते हैं. ये 5 स्टेट्स को बाय दिसंबर सबको स्टेट कर देंगे. और जैसा बात हुई, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, ग्राम पंचायत लीडर्स को, ग्राम प्रधान को, टीबी चैंपियंस को, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सबको इन्वॉल्व करके डिमांड साइड बढ़ाएंगे. एंड सप्लाई साइड ऑफ कोर्स प्रोग्राम को भी हम एडवोकेट करते रहेंगे कि दे शुड इंश्योर दैट सप्लाई साइड भी वहाँ पे रहनी चाहिए. जैसे
डिमांड बढ़ती है तो अगर सप्लाई ना हो तो बहुत दिक्कत आती है सर। सर इसमें मेरे 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी। एक तो ये सर कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लान्स बनेंगे वो सिर्फ वो 5 स्टेट्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल समझा जाएगा और हमें पूरी कंट्री के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान का एक टेम्पलेट बनाना होगा। तो दैट शुड बी दी फर्स्ट एक्शन पॉइंट सर। वो इमीडिएटली विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बने सर, ताकि जब हमारी टीम्स फील्ड में जाती हैं या हम रिव्यू करते हैं तो हम उनको बताएं कि इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाइए सर। तो ये काम जल्दी से करना है। दूसरी चीज़ सर ये जो पार्टनर मैपिंग एक्सरसाइज भी सर ये सिर्फ 5 स्टेट्स में है सर, ये भी पूरी कंट्री के लिए करनी है ताकि हम सब जगह में गैप्स आइडेंटिफाई कर पाए, तभी इसका फायदा होगा सर। ये तो एक फर्स्ट स्टेप है ना जी मैडम, पूरी कंट्री तो पार्टनर ऐसा है ना कि सारे देश में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करना है, लेकिन ये 5 हमने स्टेट्स जो है जो एक प्रकार से चुने हैं जहाँ की डेवलपमेंट पार्टनर्स और दूसरे लोगों को लेके हम एक ऐसा मॉडल जिसमें कि सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और वो मॉडल जिसको कि इम्यूलेट करा जा सके, उस मॉडल में से जो अनुभव आएंगे, जैसे अब आज अनुभव भी तो डिस्कस हो रहे हैं ना, बिल्कुल सर, वो अनुभव जो है हमारे मॉडल एक्शन प्लान में जो हम सबसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसको लागू करें या उसको हम मॉनिटर करें या हमारी टीम्स जाके देखें या हम यहाँ से मॉनिटर करें या हम वहाँ जाके देखें, तो ये एक प्रकार का इवॉल्विंग सिनेरियो होगा जिसमें सब लोगों को उस सिनेरियो को इम्प्रूव करने की पूरी इजाज़त होगी और सारी अपनी अच्छी बातों को सबके साथ शेयर करने की पूरी इजाज़त भी होगी और उसको फैसिलिटेट करने का भी मैकेनिज़्म होगा। और फिर वो सारे लोग मिलके जब सब कुछ करना शुरू करेंगे और तेज़ी से, तो धीरे धीरे यू विल हैव मोर एग्जांपल्स लाइक लक्षद्वीप और गुड़गांव वाला जो वो है जम्मू कश्मीर वाला, तो ये आपको और मिलेंगे इस तरह के उदाहरण। जैसे सर आज हमने 5 स्टेट के भी ऑफिसर को जोड़ लिया, किसी स्टेट में हम DTOs को भी जोड़ना चाहेंगे इसी मीटिंग में, ताकि वो भी सुनने से भी बहुत कुछ हमारा ऐसे है कि 24 को तो हम इंस्टीट्यूशनलाइज करके मिलेंगे, आवश्यकता के हिसाब से ज़रूरत होगी तो बीच में भी मिलेंगे और भी मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है वो भी करेंगे, वो स्टेट स्पेसिफिक भी बीच बीच में करते जाएंगे। ऐसा नहीं, ये तो एक है जो कि एक जो 8 महीने पहले पैटर्न जिसमें हमने सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स को रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप TB के काम में हमारे साथ लगिए, और आप TB का नहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो भी आप TB के काम में तो ज़रूर लगिए। तो ये हम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर से एक कामयाब स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आज के लिए तो सर अभी सर सेक्रेटरी सर भी 2 मिनट, सेक्रेटरी सर भी हैं सर ऑनलाइन, उनसे WR सर से एंड चौबे सर से 2 मिनट। Thank you, sir. Good afternoon, Honorable Minister, Secretary, AS, State Minister, and of course partners. Just to very quickly in terms of our update for Guatemala in terms of the work, it's just a very important point. We've completed gap analysis in 84 of the districts where we are in new and old, districts and blocks. So previously we did it for states, now districts and blocks, something very important. It will be important for our planning. So the district planning, the block planning, as was guided to us by Minister, it's how do we prioritize? We will only know if we know the gaps. So this is looking at services, testing, interventions on AI, X-ray results, access to healthcare, of course, TB prevention, that's another area. So as the demand from communities happen, this will feed right there. So wherever partners are also present, that's where we can interact, whether it's REACH, NICSHE, etc. That would work very well in terms of priorities, because probably every district will have a different approach. The priority will be very different. And also, this last point, as Minister was saying,
we have to just keep going on. COVID may be in our background. Just to share with you that the house-to-house survey happening also in UP, we've heard that you'd be able to pick up some of these potential TB patients, suspected cases. In Jharkhand, around 16,000 were referred for testing as the house-to-house survey was happening. So as we keep doing this, okay, we'll probably look at control of COVID as a priority, but also of TB. Because at the end of the day, from what we're seeing in all of these initial gap analysis, it's also active case finding. Really, that will make the difference, that will turn this around. Thank you, sir. Thank you. So, request Secretary, sir, to maybe share a few words, sir. राजेश जी कुछ कह दीजिए. Thank you, sir. Honorable HFM, Honorable MOS, all my colleagues in the ministry, WR India, and all the partners who have joined today's meeting. Sir, you just saw a broad overview and flavor of the partner commitment in different thematic areas. There were interventions in the field of advocacy and communication, sir. Then how to involve corporates, industry, community, then treatment and management of TB, logistics, surveillance, and a lot of other interventions which have started. Sir, I wanted to make only 2 points, and some of those points have been made, but I wanted to elaborate because they are important. Sir, when we, in the context of COVID vaccination, when we started from 21st of June, we focused on micro planning. And when I say micro planning, the planning at the level of vaccination center, at the level of district, and at the level of the state. Sir, something similar is what we are attempting to do in this intervention of ensuring elimination of TB from the country. जिन 5 राज्यों का सर चुनाव किया गया है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, हिमाचल है, उनके लिए जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनेगी राज्यों की प्लानिंग की, उसमें जिला के लेवल पर क्या प्लान बनना है, ब्लॉक के लेवल पे क्या प्लान बनना है, वो जो माइक्रो प्लानिंग है सर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज इफ दैट माइक्रो प्लान is well made and is well understood, then sir, success is guaranteed. And the same states, UP has demonstrated it in COVID vaccination. They are every day doing more than 7.5 lakh vaccinations. The same has been demonstrated by Madhya Pradesh. Every day they are doing 10.5 lakh vaccinations. So this is because of, sir, very strong and comprehensive micro planning. So this model that the 5 states will give us, which will be then replicated across the country, becomes extremely important, sir. जब आप भी जाएंगे सर राज्यों के भ्रमण पर, या राज्य मंत्री महोदय जाएंगे, या मैं और हमारे कोलीग्स मंत्रालय से जाएंगे, तो हम भी उन्हीं प्लानिंग टेम्पलेट्स के आधार पर समीक्षा करेंगे राज्यों की, जिलों की और उनके ब्लॉक लेवल पे जो काम हो रहे हैं उसकी. तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है सर. दूसरा सर, द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ क्लियर इज द कम्युनिकेशन. आर वी एबल टू कम्युनिकेट एंड हु इज कम्युनिकेटिंग. सर, जो आपने शुरुआत में बोला था कि जो टीबी चैंपियंस हैं, और जो टीबी चैंपियंस नहीं है लेकिन ऐसे लोग हैं जो अभी अभी रिकवर हो रहे हैं और टीबी चैंपियंस के गाइडेंस में बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उन लोगों की भी भूमिका है. तो जो कम्युनिकेशन उनके मार्फत होगा उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर. तो इसको भी स्ट्रॉन्ग और अधिक सशक्त बनाने की जरूरत है एज वी प्रोसीड अहेड. एंड लास्टली सर, द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टनर्स, बिकॉज दे आर द फोर्स मल्टीप्लायर्स. The partners' role is critical because they add value. They are working in areas where they have inherent strengths, and they add to the total value that the program delivers on the field.
तो इन 3 चीज़ों पर सर अगर हम आगे जाते हुए भी पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे तो हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, वी विल बी इन अ पोजिशन टू अप्रूव इट, टू अचीव इट. We will not only improve the TB program, sir, we will see more and more partners joining us in this mission as we move forward. And sir, we will be able to realize our determination of eliminating TB from this country within the stipulated timelines. Thank you, sir. Thank you, sir, for the guidance. I'll request MOS Mananiya Mantri ji for his some remarks and guidance for us. हमारे यशस्वी केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और सचिव श्री राजेश भूषण जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्रीमती आरती ओझा, DGHS डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर सुदर्शन मंडल है, DGHS नहीं है, डॉक्टर रघुराम राव और डॉक्टर आफरीन जो WHO के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जितनी बातें आज समीक्षा के क्रम में, बैठक के क्रम में आई है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि संतोषजनक नहीं, बहुत अच्छी बात। जगह जगह जो सोशल मीडिया को आपने जोड़ा, जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर के लिए आपने जो सारी बातचीत करी है, और फिर मुझे लग रहा है कि झारखंड का कुछ उदाहरण भी आपने आया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण, हरियाणा का उदाहरण, ये ठीक है कि राज्यों का उदाहरण हमें जरूर कामयाब होगा और आगे हम उन चीज़ों को कैसे दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने मार्च महीने में जो निक्षय पोषण योजना का जो लॉन्च किया था हम लोगों ने वर्ल्ड TB डे पर, उसके बाद शायद हम लोग अभी मिल रहे हैं। बीच के कालखंड में कोविड की भी महामारी बहुत ज़्यादा फैली थी, तो ये ठीक है कि हम महीने में एक बार इसकी केंद्र स्तर पर भी समीक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से राज्यों में भी हो, जिले में भी। नीचे के लेवल पर जब तक नहीं होगा, हम केंद्र में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करने का काम तो नीचे के लेवल पर ही करना है। मुझे लग रहा है कि ये जन आंदोलन का जो अभियान, डॉक्टर साहब ने भी उस दिन कहा कि हमें एक अभियान के रूप में इसे एक जन आंदोलन के रूप में चलाना है। तो जन आंदोलन के लिए सबसे बड़ी बात यह है, उसमें जनता की सहभागिता हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। पीपुल्स के बीच हम जब अवेयरनेस के साथ साथ पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक सहभागिता, किसी भी कार्यक्रम में लोक सहभागिता सुनिश्चित होगा तो वो कार्यक्रम सफल होगा। और मुझे लग रहा है कि हम कमरे में विचार विमर्श जो भी करते हैं, इसको मुझे गली तक कैसे ले जाए। अभी एक बड़ा समुदाय हम लोगों से किसी न किसी कारण, ठीक है, उसमें बहुत सारे राज्यों ने काम किया भी है, लेकिन जो गरीब तबके हैं, जहाँ इस प्रकार की बीमारियाँ कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर वर्ग में ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है, वो तबका कहीं न कहीं अपने को महसूस करता है। एक तो वो अस्पताल के अंदर जाता है, उससे अच्छे से बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, वो बेचारा अशिक्षित भी है, गरीब है, उसको कोई देखने के लिए ठीक से समय पर उसको जो उपयोगी दवाई मिलना चाहिए, वो कई बार डांट डपट करके उसको वहीं से भेज देता। मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी मेरा अनुभव आया और मैंने इस मार्च के बाद जो कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने एक सप्ताह का एक अभियान चलाने का अपने क्षेत्र में तय किया। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं एक सप्ताह का अभियान, हालांकि वो
जो इन्होंने कहा सचिव जी ने कि अभी जो मैक्रो प्लान उन्होंने तय किया है, तो हमने जिला में वहाँ के टीबी के पदाधिकारी को कहा कि आप थोड़ा मैक्रो प्लान करो कि आपके यहाँ कितने कितने लोग टीबी के मरीज किन किन गाँवों में, पंचायतों में है, प्रखंड में, और उनको हमारी यात्रा के समय उनको ले आओ। तो मैंने टीबी के लिए एक यात्रा तय किया। वो 1 सप्ताह का अभियान था, लेकिन बीच में मुझे कुछ प्रधानमंत्री जी की मीटिंग यहाँ हो गई, मुझे छोड़ के आना पड़ा, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल रहा अभियान। और मैं आपको बताऊंगा कि हमने 3 जिला की यात्रा थी और तीनों जिला में हम गए और देर शाम तक भी लोगों ने उसमें भाग लिया। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि जो हमारे यहाँ RMRI राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और मैंने उनसे भी बात किया था कि आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो 2 गाड़ी NIRT से जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन जो टीबी पर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा 2 गाड़ियाँ वहाँ भेजी गई थी, जो जगह जगह वो घूमने का, सर्वेलेंस का कई कार्यक्रम, उनके कई टीबी क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ जाते रहे। मैंने उनको कहा कि इन दोनों गाड़ियों को पहले भेजो और 1 सप्ताह इस अभियान में हमारे साथ रहेंगे, ताकि उनकी जांच भी ऑन स्पॉट हो जाए, सब कुछ हो। तो मुझे लग रहा है कि इतना असरदार कार्यक्रम हुआ, मुझे अपने भी उम्मीद नहीं थी। जब मैं गाँवों की तरफ जा रहा था और वो टीवी की गाड़ियाँ, उसमें प्रचार भी हो रहा था कि सांसद जी निकले हैं टीबी उन्मुक्त भारत बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी का, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का फोटो, प्रधानमंत्री जी का, इनके उपदेश, इन्होंने जो उक्तियाँ कुछ कही अच्छी अच्छी प्रधानमंत्री जी ने साथ में, वो सारी गाड़ियों में भी मैंने उसको डलवाया और उसका बड़ा फोकस रहा। गाँव में जाने के बाद लोग भीड़ जुड़ जाते हैं और भीड़ से ही लोगों ने कहा कि देखिए ना, ये चमरटोली, जैसे जिसको हरिजन टोला कहते हैं, नाम लोग गांव में चमरटोली बोलते हैं, चमरटोली में फलाना के बेटा को भी टीबी हुआ है, कोई देखता नहीं है उसको। कुछ गया था डॉक्टर बाबू के पास, वहाँ से उसको बोला अच्छा ठीक है ये दवाई ले लो, भाग। मैंने वहाँ जा कर के उनको बुलवाया उस गांव से, और टीबी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उन सब लोगों को साथ लिया। मतलब यात्रा में पूरा टीम यात्रा में चल रहा था। तो उसका लाभ ये हुआ, एक तो उनके ऊपर असर पड़ा, भाई अगर सांसद जी, मंत्री अगर गांव गांव घूम रहे हैं तो हमें भी इसके लिए करना पड़ेगा, केवल ऑफिस में बैठ के नहीं। तो जब वहाँ गए तो मैंने कहा कभी आप इस गांव आए हो? तो नहीं। हमने कहा जितने जगहों पर टीबी है उन गाँवों में का सूची आपके पास है कि टीबी कितने लोगों को है, ये जांच आपने करके बताया है, तो आप कितने गांव में गए हैं? आप यहाँ 2 साल से हो, 2 साल में कितने गांव गए? जस्ट पूछताछ किया मैंने, तो मुझे पता चला कि मुश्किल से 2 साल के अंदर वो फील्ड में उनका गाँव में विजिट बहुत ज़्यादा हुआ होगा, तो 20-25 दिन का ऐसा बताया। तो मैंने कहा कि आप ऑफिस में कम बैठो और गाँव में घूमो। ऑफिस में भी बैठना आवश्यक है, लेकिन गाँव जब घूमेंगे तब आपको पता चलेगा सच्चाई का। जो सच्चाई मुझे, अगर मैं यात्रा नहीं करता और उस गांव में जब मैं गया तो उसमें उस परिवार में एक नहीं बल्कि बाद में जांच हुआ तो मुझे बाद में खबर दिया, उस दिन तो नहीं, 12 लोग उस टोले में टीबी के मरीज थे, 12 लोग टीबी के मरीज थे। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के अभियान से बहुत बड़ा बल मिलता है, एक जन आंदोलन का स्वरूप भी होता है। लोग रोक रोक के जगह जगह बाबू टीबी का ही, अच्छा उसमें पर्चा भी मैंने छपाया था कि टीबी के लिए क्या क्या चीज़ लक्षण है, क्या उपाय करना चाहिए। तो लोग बड़ा, जो कॉमन लोग हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाट बाजार लगा हुआ था, वहाँ रोक दिया मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी, लोग जुट गए, अच्छा क्या भाई, तो टीबी के लिए आए हैं, टीबी को उन्मूलन की दिशा में सांसद जी घूम रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं। तो ये एक
मुझे लगा कि हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अभी जितना जोड़ना चाहिए, कुछ राज्यों ने ज़रूर थोड़ा बहुत पहल किया है, इसको कोविड के कारण वो पहल उतना नहीं हो पाया। कोविड के कारण हम लोग सब लोग लगे रहे उसमें। तो मुझे लगता है कि ये पहल अवश्य करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, 3.5 साल का समय है, 2025 में इसको टीबी मुक्त भारत बनाना है। तो वैसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि इस अभियान को और बल देना पड़ेगा। और एक 5 राज्यों को तो ठीक है, हमने 5 राज्यों में ये अभियान विशेष रूप से चलाएंगे, क्योंकि यहाँ टीबी लोड ज़्यादा है। लेकिन और राज्यों में भी एक अभियान चले, और गाँव में जितना हम जाएंगे नीचे के लेवल पर, और विशेष करके झुग्गी झोपड़ी जो है, जो तंग बस्ती जिसको शहर में कहते हैं, उसमें आप जाइए, उसके अंदर आप जांच करिए, उसमें ही आपको ज़्यादा बीमारी पकड़ में आएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मैंने ऐसी यात्राएं बिहार में, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय भी मैंने यात्राएं बहुत सारी की थी, और उस यात्रा से मुझे बल मिला। और कई चीज़ें, चाहे वो तंबाकू सेवन का हो, चाहे बिटिया भ्रूण हत्या की बात हो, हर एक विषय पर मैंने गाँव में यात्राएँ की, और उन यात्राओं से मुझे भी अनुभव हुआ और जानकारियाँ मिली, और उसका एक बल भी मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों पर एक स्ट्रेटजी हमारी बनी है। अच्छी बात है, आप लोगों ने इतने चीज़ों को जोड़ा है। मुझे इसमें 1-2 चीज़ और लगा कि जैसे हमारा टूनेट जो टीबी का जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जो टेस्ट अभी टूनेट वगैरह का जो हम कर रहे हैं, सीबीनेट टूनेट वगैरह के माध्यम से, तो वहाँ जाए तो साथ साथ उसकी जांच की मशीनें भी साथ में रहें, ताकि ऑन स्पॉट उसकी जांच हो जाए और उसका लाभ मिलेगा। अभी हमारी बात भी है IIIT बिहार में, भागलपुर जो है सरकार की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है IIIT का, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो उन्होंने तैयार किया है, और कोविड जांच का भी है, और साथ साथ टीबी के जांच का, अनेक इस प्रकार के संक्रामक बीमारियों की जांच का उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंट वे में उसका तैयार किया है। और उस पर उन्होंने कहा कि हमें इसको आप करें तो इससे जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर बहुत ही कामयाब होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मुझे कल पता चला कि शायद तमिलनाडु में या बेंगलोर में भी, नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, कल तो मीटिंग में बात हो गई, कोई इंस्टीट्यूट में मिस कर रहा हूँ, कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी इसी प्रकार का चीज़ एक वहाँ स्टार्ट किया है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड का है विशेष रूप से। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे जो उत्साही संस्था हैं या ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टनर्स के रूप में आगे मिल सकते हैं, हमने बहुत अच्छा है कि हमने स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स काफ़ी तैयार किया है, और उसके अनुभव भी हम रोज प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ करके इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो और सारी बातें तो विचार में आया है, हम लोग जब मिलते रहेंगे तो कई नई बातें भी सामने आती है, सामने कई बात समझने को मिलता है। आज भी हमें बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने जोड़ के निकाला है। तो इसको लगातार हमें कंटिन्यूस करने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमने मीटिंग प्रारंभ करने से पहले तय किया था कि मीटिंग को अब हम लोग थोड़ा सा भाषण के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्शन के माध्यम से इसको हम लोग आगे बढ़ाया करेंगे। तो अभी सेक्रेटरी हेल्थ ने और हमारे कुलीग मिनिस्टर ने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। हमने 1-1.5 घंटे में काफ़ी बातें डिस्कस की हैं। लास्ट वीक भी हम लोगों ने
वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस और इसी तरह से जो सारे सरकार में दूसरे हमारे मंत्रालय क्या क्या कर सकते हैं उसका भी एक हम लोग जो है प्रोटोटाइप एक प्रकार से विकसित कर रहे हैं। आज भी बहुत सारी बातें आई हैं और मुझे खुशी है कि जो हम लोगों ने नवंबर के आसपास ये मीटिंग शुरू की थी पार्टनर्स के साथ, और पार्टनर्स का इसमें सबका कमिटमेंट पहले से भी था, लेकिन उसको और ज़्यादा एक प्रकार से एक डायरेक्शन में और ज़्यादा फोकस करने की, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की थी। वो एक अच्छा शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे सारे देश से हमें, सारे डिस्ट्रिक्ट से, सब जगह से टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, लेकिन उसके काम को करने के लिए भी तरह तरह के हमें एक सफल प्रोटोटाइप डेवलप करने हैं डिफरेंट लेवल्स पर। उसके लिए हमने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसमें एक प्रकार का काम के अंदर डिवीज़न करने की कोशिश की है, और हमने नहीं किया, आपस में सब लोगों ने मिलकर किया है। और उसी के आधार पर फिर 4-5 स्टेट्स के अंदर जो है थोड़ा सा बड़े पैमाने पर सफल मॉडल और तेज़ी से डेवलप हो, ताकि वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें से इमर्ज हों, वो सारे देश में हम ऐड ऑन करते जाएं। उसी दिशा में ये उत्तर प्रदेश का, हमारा मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, ऐसे ही एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, ये जो कुछ स्टेट्स के अंदर विशेष रूप से जो है ये पार्टनर्स हमारे लिए डेवलप करेंगे। मैं समझता हूँ कि सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हर बार जो भी चीज़ें हमारे डिस्कशन में से बेस्ट आती हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं, उनको एकदम पकड़ के और हम अच्छी तरीके से स्केल अप कर दें और सब जगह तक उनको स्प्रेड कर दें। ये हमारी इस मीटिंग का बेसिकली पर्पस है। हमारे पास अगले महीने बताने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए जज्बे के साथ हमें भारत से टीबी को एलिमिनेट करने के लिए अपना, जिसे कहते हैं, मन, हृदय और आत्मा, तीनों चीज़ों को इस काम के अंदर लगाना है। और ये असंभव नहीं है, ये संभव है। जब भारत ने चेचक को समाप्त करने के बारे में सोचा होगा या पोलियो को समाप्त करने के बारे में सोचा होगा, तो बहुत सारे लोगों को यह असंभव लगता था। और लेकिन भारत ने चेचक को भी समाप्त करके दिखा दिया, पोलियो को भी समाप्त करके दिखा दिया। पोलियो में तो दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में होते थे, और बहुत सारे देश कहते थे जब तक भारत कुछ नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। अफ्रीका ने शुरू तब किया जब भारत ने 95 में करके दिखाया पहली बार नेशनल इम्यूनाइजेशन डे अपना। तो इसलिए पूरे हम अपनी हिम्मत के साथ इस काम को करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे को सबको जिम्मेदारी दी है कि दुनिया का लक्ष्य होगा 2030, लेकिन हम 2025 तक इसको करके दिखाएंगे। तो इसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। आपका सबका मैं आज बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी हमारे पार्टनर्स और सभी बहुत सारे इसमें एक्सपर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रतिनिधि, बहुत सारे NGOs, बहुत तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आने वाले जो हमारे सब्सिक्वेंट मीटिंग्स होंगी उसमें हम लोग इसको और बड़े पैमाने पर स्केल अप करेंगे। बीच के 30 दिनों में भी छोटे ग्रुप्स में भी मिलकर और लगातार जो है हम नए नए इसमें आयाम जोड़ते चलेंगे, इसी विश्वास के साथ कि इसी उत्साह के साथ आप भविष्य में भी काम करते रहेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आज की इस मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करता हूं।